Yeah, good afternoon, students. Namaskar, Assalamu alaikum, good evening, everything to one and all. Today, we are going to start with um, one lesson. It is from the sixth class from history part. Just I'm going to give you the small introduction what do you mean by history. Let's have a look on the screen. Uh, Today, I'm going to explain you in two languages, one in Hindi, another one in English. Wherever it is important for the students that I should have to explain in Hindi or Urdu, I will explain it. So please have a look on the screen. Yeah. See, first, what do you mean by history? The word history is derived from the Greek word historia. Its meaning a narrative of past events. हिस्ट्री जो वर्ड है ग्रीक वर्ड से जो लिया गया है उसका माने ये है कि जो पास्ट में गुजरे हुए इवेंट्स के बारे में बताने वाली चीज का नाम हिस्ट्री है द पीपल हु स्टडी हिस्ट्री आर कॉल्ड हिस्टोरियंस जो हिस्ट्री जो लोग हिस्ट्री पढ़ते हैं उन्हें हम हिस्टोरियंस कहते हैं so the historians are detectives who use the remains of the past as clues to unravel its many mysterious and stories. So these peoples are detectives who will uh, use the remains of the past. Whatever the remains will be there, whatever the things will be there, like the pottery, when we excavate or when we dug out the mud, we'll find the Harappa and Mohenjo-daro civilization was found in India and Pakistan also. So this was unraveled and many mysterious things and stories were found out. सो जो हिस्टोरियंस जो लोग हैं ये लोग जो जो भी चीज़ बचे हुए हैं जैसे कि वो लोग जो ज़मीन खोदेंगे खोदने के बाद उनको कुछ गार निकलेंगे या स्टोन्स मिलेंगे या फिर कुछ केव्स मिलेंगी जिसके बदौलत में जो कोई नई चीज़ें मिलेंगे इसके बदौलत वो लोग जो उसकी जो स्टोरीज बनाएंगे और जो उसकी सिविलाइजेशन को जो बताएंगे so why we should have to study history see history helps us how things have changed over time by relating the past to the present. History helps us to understand the present situation that take proper decision. Not only that, history helps us to understand how societies and communities evolve and get changed. It gives a sense of identity. So, तारीख history means तारीख in Urdu. चरित्र यानी कि हिंदी में कहते हैं तो हमें जो हिस्ट्री इसलिए पढ़नी चाहिए कि जो हमें जो गुजरे हुए कल यानी कि गुजरे हुए जो पास जो चीज़ें हैं उसके बदौलत हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उसके ऊपर हम जो डिसीजन ले सके प्रॉपर डिसीजन जो गलती गुजरे हुए लोग कर रहे हैं अब हम वो गलती दोबारा ना करें और हिस्ट्री हमें ये भी बताती है हाउ द सोसाइटी एंड कम्युनिटी यूज टू बी देयर सोसाइटीज किस्म की सोसाइटीज रहते थे और कम्युनिटीज किस किस्म के रहते थे हाउ ग्रेजुअली द चेंजेस किए यानी कि रहन सहन में जो चेंजेस जिस तरीके से आए हैं इंडिया के अंदर वो तमाम चीज़ें बताती हैं इट गिव्स अ सेंस ऑफ आइडेंटिटी ये हमें हमारी पहचान बताती है इट गिव्स एन आइडेंटिटी नाउ द सोर्स ऑफ हिस्ट्री व्हाट आर द सोर्सेस ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री की जो पढ़ने के लिए जो सोर्स है वो दो किस्म के देयर आर टू टाइप्स वन इज द आर्कियोलॉजिकल सोर्स एंड अदर वन इज द लिटरेरी सोर्स सो व्हाट डू यू मीन बाय दैट हैव ए सीन on the chart so that it will be able to understand easily तो जो इंडिया हिस्ट्री जो है इंडियन हिस्ट्री जो है उसको हम जो अगर देखना चाहेंगे तो दो प्रकार के तरीके से हम देख सकते हैं एक है आर्कियोलॉजिकल हिस्ट्री और सोर्स ऑफ हिस्ट्री अनदर वन इज लिटरेरी सोर्स ऑफ हिस्ट्री तो आर्कियोलॉजिकल में क्या है व्हाट डू मीन बाय आर्कियोलॉजिकल इन दिस विल आइडेंटिफाई द कॉइन्स मॉन्यूमेंट्स आर्टिफैक्ट्स एंड ऑब्जेक्ट्स इंस्क्रिप्शंस अदर्स fossils other things. Now coming to the literacy, we'll find religious like Hindu, Buddhist, Jain, how do people used to believe, what is their culture, what is their political administration, what was their social administration on those days, how the people used to rule on those days, everything we can be mentioned and it will be in a written form. Like another one is secular, it talks about the autobiographies or biographies or the dramas or poems or traveler people who used to go for the that means accounts of foreign travels I can say so all these things will be in the literary rate now we learn one by one
What do you mean by archaeological source? In depth, one by one. Now, archaeological source किसे कहते हैं? Archaeology is the scientific study of the past based on its physical remains. देखिए, what are the things was remained by the physical which we can able to study about the past is known as archaeological source. So जो भी चीज अब जो हम फिजिकली जो हम देख सकते हैं, जैसे फिजिकल रिमेन्स में जैसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, जिसे हम इस्तेमाल में ला सकते हैं या फिर उन्हें जो दूसरों को बता सकते हैं, ये तमाम चीजें देखिए, तमाम चीजों का जो सो मौजूद होना इसे आर्कियोलॉजिकल साइट भी कहा जाता है। द प्लेस फ्रॉम वेयर दीज रिमेन्स आर एक्सकवेटेड, यानी कि वो जगह जहाँ पे जो सो हमें जो ये रिमेन्स बचे हुए, रिमेन्स इन द सेंस जो जो चीज़ें बचे हुए पुरानी चीज़ें, देखिए जैसे कि पॉटरी है या कॉइन्स है या सील्स है या उनके सिटीज है उस दौर के, या फिर जो भी चीज़ें मौजूद है, वेपन्स है उनके, या फिर उनके क्लॉथ्स है या स्टैचूज या स्कल्पचर्स जो भी रहेंगे, उस बुनियाद पे हम जो सो आइडेंटिफाई करेंगे। सो व्हाट इज हियर, इट मीन्स दैट आर्कियोलॉजिकल इज अ साइंटिफिक स्टडी, ये एक साइंटिफिक स्टडी है जो इट टॉक्स अबाउट द पास्ट बेस्ड ऑन फिजिकल नॉलेज, जो गुजरे हुए कल यानी कि पास्ट में जो गुजरा हुआ है उसके फिजिकल रिमेन्स को देखते हुए जो स्टडी करेंगे उसे आर्कियोलॉजिकल स्टडी कहा जाता है। द प्लेस फ्रॉम वेयर दिस रिमेन्स आर एक्सकवेटेड मीन्स डगआउट इज नोन एज आर्कियोलॉजिकल साइट। उस जगह पे जहाँ पे हमें ये रिमेन्स मिलेंगे उसको अगर हम खोदेंगे, खोद कर हम जब जमीन के बाहर निकालेंगे उसे हम क्या कहेंगे? आर्कियोलॉजिकल साइट कहेंगे। सो व्हाट डज इट इंक्लूड, उसमें क्या मौजूद रहेंगे? इट इंक्लूड्स टूल्स, वेपन्स, पॉटरी, ज्वेलरी, क्लोथ्स, सील्स, पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स एंड इवन रिमेन्स ऑफ द एंटायर सिटी। तो हम इसके अंदर क्या क्या देखेंगे? हमें जो इसके अंदर टूल्स मिलेंगे, यानी कि उस किस किस्म के टूल्स इस्तेमाल क्या करते थे, वेपन्स देखेंगे, पॉटरी देखेंगे, ज्वेलरी देखेंगे, क्लोथ्स देखेंगे, सील्स में तो जो ट्रेडमार्क के लिए जो स्टैंप और सील होता है ना, उस वो मौजूद मिलेंगे। पेंटिंग्स, स्कल्पचर्स, कॉइन्स, उस दौर में जो कौन से सिक्का चलते थे, मॉन्यूमेंट्स, कौन से किस किस्म के मॉन्यूमेंट्स रहते थे, हम हर चीज को देखते हुए जो सो तमाम चीजें आर्कियोलॉजिकल साइट में आ जाते हैं। वन इम्पोर्टेंट थिंग इज द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज नुमिस्मैटिक्स। द स्टडी ऑफ कॉइन्स इज नोन एज नुमिस्मैटिक्स। कीप इन माइंड, जो कॉइन्स के बारे में जो स्टडी बताती है हम उसे क्या कहेंगे? नुमिस्मैटिक कहेंगे। नाउ विल गो फॉर द आर्कियोलॉजिकल साइट। इफ यू सी इन दिस पिक्चर यू कैन सी हाउ द पीपल्स आर डगिंग एंड दे आर एक्सकवेटिंग ए साइट। ये अगर आप जो पिक्चर देख रहे हैं इसके अंदर देखिए आप पब्लिक जो सो ये जो लोग हैं आर्कियोलॉजिस्ट है, ये लोग जो सो खुदाई कर रहे हैं और वो साइट को जो निकाल कर उसके अंदर जो जो चीज मिले हैं, रिमेन्स जो भी है, रिमेन्स का मतलब है जो वहां पे मौजूद है। व्हाट आर द थिंग्स आर रिमेन ओवर देयर आर नथिंग बट रिमेन्स, एंड विद द हेल्प ऑफ दोज रिमेन्स दे आर आइडेंटिफाइंग दैट which civilization is it, or how long, or since it belongs to which period. All these things will be available over there. So तमाम चीजें जो भी मौजूद हैं यहाँ पे, इसमें जो हर चीज आपको मौजूद है, यानी कि ये लोग जो सो डिग करेंगे, डिग करके जो सो जमीन के नीचे जो जो पाए जाएंगे, जैसे कि मॉन्यूमेंट्स है, कॉइन्स है, सील्स है, पोट्री है, उसके बाद कुछ स्टैचूज रहेंगे जो भी फिगरिंग्स कहते हैं। फिगरिंग्स मीन्स the goddess, god or goddesses, those is how the people used to worship. उस दौर के जो लोग पूजा करते थे, उस दौर जो देवी और माताओं को जो पूजते थे उस दौर के लोग, उन्हें हम फिगरिंग्स कहेंगे। वो भी जो जो चीजें मौजूद है वो तमाम चीजें पाई गई। Now if you see in this picture, these are the precious gems and stones set into an necklace form. Those are the very precious stones and gems on those days on the people used to wear. These are the ornaments. उस दौर की जो से ज्वेलरी या ऑर्नामेंट्स होती है जो उस दौर के लोग पहना करते थे। So this study is called the archaeological study. Now next one, these are the seals. This is the statue of a person by the name Pasupati. If you see here, he is having two horns and surrounded by the animals. This tiger is here, a cow is here, a small deer is also here,
different kinds of elephant is here. So different kinds of animals are surrounded by him is known as, this is a seal of Pasupati. So what we say, we said that archaeology, that means archaeological source is a source of history which includes weapons, tools, pottery, seals, clothes, sculptures, coins, monuments, etc. So among these, this is also one of those things. हम ये बता रहे थे आर्कियोलॉजिकल जो सोर्स है हिस्ट्री का, उसके अंदर जो सो सील्स भी आते हैं, यानी कि ऑर्नामेंट्स जो रहेंगे, जो लोग खोदाई करके जो निकालेंगे उसके अंदर जो जो चीज़ें मिलेंगी हमें, जैसे कि पॉटरी है, ज्वेलरी है, ऑर्नामेंट्स है, सील्स है, या एंटायर सिटी ही क्यों ना हो. इफ यू सी हियर इन दिस पिक्चर यू विल कैन सी द एंटायर सिटी इज देयर. दिस शोज द वर्क ऑफ द आर्कियोलॉजिस्ट. देखिए ये जो वो लोग क्या करें, एक सिटी को आइडेंटिफाई करें जो आज से तकरीबन 2003 6000 साल 10,000 साल पुराने जो जो दौर में जो लोग जहाँ पे रहते थे आज जिसका नाम और निशान मौजूद नहीं है, वो तमाम चीजें वो लोग जो सो जमीन खोद कर फिर से प्रीहिस्ट्री बनाते हैं. Yeah, if you see here in this next picture you can identify. So these are the pottery, these are the seals, and this is the figurines, statues. So ये लोग उस दौर में जो से पॉटरी है या उस दौर की जो भी क्ले सॉइल से जो बनाते हैं, ये तमाम पिक्चर्स उसी के. Now these are the tools, these are the weapons we can say. उस दौर के हथियार या टूल्स जो भी वो लोग इस्तेमाल करते थे उनकी रोजमर्रा जिंदगी के लिए, तमाम चीजें वहाँ पे मौजूद हैं. So these are the tools or the weapons on those days the people used to utilize for their livelihood. Now if you see here, these are the seals. ये क्या है, seals है, और this is the language which has been written with some numbers. So this is the bull seal, this is the unicorn, rhinoceros are there. So these are the things where the people used to utilize those seals फॉर ट्रेडिंग पर्पस. देखो उस दौर में भी जो सो लोग जो सो ट्रेडमार्क इस्तेमाल, सील्स का इस्तेमाल करते थे जो बिजनेस के लिए इस्तेमाल करते थे ना, एक्सचेंज ऑफ गुड्स. नाउ दिस आर द कॉइन्स, ये सिक्के हैं, इस दौर के सिक्के या कॉइन्स है जो वहां पे चला करते थे. सो दिस आर द थिंग्स वेयर वी कैन आइडेंटिफाई द हिस्ट्री. सो हिस्ट्री मालूम करने के लिए हमें दो रास्ते, एक आर्कियोलॉजिकल साइट है, दूसरा लिटरेसी सोर्स है. सेकेंड वन विल गो विद द लिटरेसी सोर्स. अगेन दिस लिटरेसी सोर्स इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट. वन इज रिलीजियस लिटरेचर, अनदर वन सेक्युलर लिटरेचर. ये जो लिटरेचर है, लिटरेसी सोर्स है, ये भी जो सो दो भाग में डिवाइड हो चुकी है. एक जो सो रिलीजियस बेस पे है, दूसरा सेक्युलर बेस पे. रिलीजियस लिटरेचर के अंदर all the texts that deals with social, political, economical and religious lives of the people of ancient India. जो religious यानी कि इंडिया के अंदर जो religion था, उसका political, social और economical background कैसा था उस दौर का religiously, तो तमाम चीजें जो लिखी गई है टेक्स्ट के अंदर उसे हम religious literature कहते हैं. Now coming to the secular literature, it includes all the written texts that were non-religious or non-religious in nature. Totally it is non-religious, it is totally apart from religious. It includes autobiographies, biographies, court chronicles and accounts of foreign travels. और एक जो दूसरा है वो है सेक्युलर फॉर्म में है, यानी कि सेक्युलर लिटरेचर है जो टोटली रिलीजियस से हटके, इसमें जो सो नॉन रिलीजियंस में रहेंगे, यानी कि टोटली इट इज इन नेचर इट इज नॉन रिलीजियस. नाउ ऑटोबायोग्राफीज, biographies, these are the examples or these are the texts are including in secular literature. जो secular literature में जो मौजूद है ना कि जो include है वो क्या है, autobiographies, biographies ऑफ एक क्यों ना कि राजा या महाराजा या उस दौर के कोई बिजनेस, यानी कि उस दौर का जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम कैसा था, उस दौर का पॉलिटिकल इवेंट्स कैसा था, उस दौर में जो पीपल्स स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा था, हर चीज रिटर्न में मौजूद मिलेगी. So and who are the foreign travelers, यानी कि बाहर के दूसरे मुल्कों से या दूसरे सिविलाइजेशन से लोग, कौन से लोग आते थे, वो लोग क्या नोटिफाई करे और हमें क्या नाम दे के गए थे, तो तमाम चीज़ों का जिक्र इसमें मौजूद है. So all the things are included in this. Now again the literacy source of history includes the written works that provide information about the past. Literacy source क्या है, it includes a written part which that means it talks about the past. ये एक written work है जो पास्ट का इंफॉर्मेशन हमें देता है. सिंपल वर्ड लिटरेसी सोर्सेज
Nothing but it is a source of history that includes all the written works that provide the information about the past. Okay, past में जो भी information जो गुजरा हुआ information है वो हमें हर चीज written में पाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे लिटरेसी सोर्स कहेंगे। लिटरेसी सोर्स अगेन इट विल बी इन द टू टाइप्स रिलीजियस एंड सेक्युलर। फिर इसके अंदर क्या है, ये लिटरेसी सोर्स क्या है, अगेन इट इज इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। So inscriptions and manuscripts are the earliest examples of handwritten records. जो भी handwritten records है वो फिर दो किस्म के, एक inscriptions में है, एक manuscripts में है। Now we'll go for the first one, that is inscriptions. Inscriptions किसे कहते हैं? So what do you mean by inscriptions? Inscriptions are writings engraved on hard surfaces such as stones, pillars, copper sheets and caves. Okay, जो भी पिलर्स के ऊपर हार्ड सरफेस रहेगा, जो राइटिंग हमें पाई गई है हिस्ट्री के बारे में, जो एक पत्थर पे लिखी हुई इंफॉर्मेशन हो या केस के अंदर लिखी हुई हो या पिलर के ऊपर या कॉपर शीट के ऊपर लिखी हुई मौजूद हो, हम उसे क्या कहेंगे, इंस्क्रिप्शंस कहेंगे। व्हाट इन बाय इंस्क्रिप्शंस? इंस्क्रिप्शंस आर दोस writings which have been engraved or which had been identified on the hard surface of the stones or pillars or copper sheets or inside the caves. What does it do? It helps us to understand the social customs of the period, trace the evolution of scripts and languages, and provide dates of major events. So it is helping in the to identify the society customs of those periods, means on those days how the people used to wear, what sort of jewelry, ornaments, clothes, what sort of pottery or what sort of tools and weapons they used to use, what sort of coins were run, what mode of transportation was going on, all these things will be there written. जो उस दौर में जो लोग जो से कैसा व्यापार करते थे, कौन सा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज करते थे, वो लोग क्या पहनते थे, क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, कैसा उनका लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था, तमाम चीजें वो लोग नोटिस पे करेंगे, रिटर्न में लिखे, उसे हम क्या कहते हैं, इंस्क्रिप्शंस करेंगे। और ये एक इम्पोर्टेंट इट्स अ ट्रेस एवोल्यूशन। एवोल्यूशन मींस हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ द स्क्रिप्ट्स एंड लैंग्वेजेस, वो लोग कौन सा स्क्रिप्ट लिखते थे, कौन सी जबान या भाषा बोलते थे या लिखते थे, एंड प्रोवाइड्स डेट्स ऑफ मेजर इवेंट्स, और कौन सी डेट पे क्या क्या इवेंट्स होते थे, खास खास कुछ इवेंट्स होते थे कि उस दौर में, वो तमाम चीजें जो सो रिटर्न में मौजूद है। नाउ द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। द स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन की स्टडी को हम क्या कहेंगे, एपिग्राफी कहेंगे। दिस इज फॉर 1 मार्क फॉर द स्टूडेंट्स who are going to write the exam for CTET। CTET में ये पूछने के जो सो अवकाश के पॉसिबिलिटी है, जो 1 मार्क के लिए कंपलसरी रहेगा। The study of inscription is called dash, that is answer is epigraphy. Now next one, these are the examples how the inscriptions was written on the rocks, यानी कि एक स्टोन है, पत्थर पे जो सो किस तरह से लिखे है, ये एक एग्जांपल आपके लिए। दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इंस्क्रिप्शंस। सेकेंड वन, दिस इज द पिलर, एक पिलर है जो इसके पिलर के ऊपर लिखा हुआ है, ये मौजूद है पूरा, okay, दिस इज द इंफॉर्मेशन हैज बीन कलेक्टेड। नेक्स्ट वन, दिस इज अ कॉपर शीट, यानी कि कॉपर के प्लेट के ये ऐसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आने वाले लोगों के जो एक मैसेज था जो कभी मिट ना पाए, तो ये कॉपर शीट्स में लिखा गया था ना, कि ये तमाम चीजें को क्या बोलेंगे हम, इंस्क्रिप्शंस बोलेंगे। द ऑल दिस कलेक्शंस, द इंफॉर्मेशन व्हिच हैज बीन रिटन, the writings on stones, pillars or copper sheet or even in the caves, caves के अंदर जो लिखा हुआ है या जो स्टैचूज जो बता रहे इंफॉर्मेशन मिल रही है, हम इसे क्या कहेंगे, inscriptions कहेंगे। Now we'll go to the second part, that is manuscripts. What do you mean by manuscripts? Manuscripts are handwritten texts or documents. In the beginning they were written on the leaves or barks of trees or on the dried animal skin. Later they came to be written on paper. So manuscripts are nothing but these are also written document, but it used to be written on the soft one or the light one. That means it is opposite to the inscriptions. Here they used to write on the leaves or the barks of the leaves or the animal skins, or on the sometimes they used to write on the leather, that means skins of animals, and they used to write sometimes on the bones also. Sometimes they used to use bones also.
So all afterwards, what happened? Gradually, the printing started coming into the market, and the people started writing on the paper also. सो मैन्युस्क्रिप्ट हम उसे कहते हैं, ये एक हैंड रिटन टेक्स्ट रहेंगे और डॉक्यूमेंट्स रहेंगे ये। तो ये किस पे लिखते थे ये लोग जो है पत्तों पे लिखते थे, बाग्स ऑफ लीव्स यानी कि ट्रीज, बाग्स ऑफ ट्रीज यानी कि जो झाड़ सूखने के बाद जो उसका जो तट्टा निकलता है, और तट्टे के ऊपर भी वो लोग लिखते थे। यानी कि जो लकड़ी का चकले के किस्म का रहेंगे, बारीक बड़े बड़े झाड़ जब सूख के बड़े उसका जो निकालते थे स्किन समझे, वो किस्म से निकालते थे। ड्राइड एनिमल्स, ड्राइड और डाइड एनिमल स्किन यानी कि जानवर को जब मार दिया जाता था या मरे हुए जानवर को जो सो उसकी जो चमड़ी होती है या उसकी जो स्किन होती थी, उस स्किन को धूप में सुखाते थे, उसको वॉश करते थे, सुखाते थे। उसके बाद जब सूखी हुई स्किन के ऊपर इंफॉर्मेशन या डॉक्यूमेंट्स या टेक्स्ट लिखते थे वो लोग। तो इसको हम क्या कहते हैं? मैन्युस्क्रिप्ट्स कहते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स जो अंडरस्टैंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द इंस्क्रिप्शंस एंड मैन्युस्क्रिप्ट्स। तो मैं समझ सकता हूँ बच्चों, आप लोग जो आज ये जान चुके हैं कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स किसे कहते हैं और इंस्क्रिप्शंस किसे, यानी कि दोनों का डिफरेंसेस क्या है। दूसरी चीज, हिस्ट्री का जो सोर्स है वो दो किस्म का, एक आर्कियोलॉजिकल है, दूसरा लिटरेसी। आर्कियोलॉजिकल में जो टोटली कॉइन्स, ज्वेलरी, वेपन्स, ये तमाम चीजें मौजूद है। और लिटरेसी में जो इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स। लेट्स हैव अ लुक। अब हम एक बार देखेंगे। लीव्स बोलते पत्ते तो मालूम है, ये बाक ऑफ द यानी कि एक सूखा झाड़ का दोस्तों एक तख्त ऐसा तख्ते के ऐसे किस्म का रहता है, वो लोग निकाल के उस पर लिखते थे। नेक्स्ट, दिस आर द लीव्स। ये जो है पाम लीव्स है, ये पाम लीव्स के ऊपर जो ये लिखा हुआ है, ये भी एक जो सॉर्ट ऑफ लीव्स है, इसके ऊपर जो लिख के ऐसा बन के रखते थे इंफॉर्मेशन। इफ यू सी हाउ दे हैव बीन टैग, ये जो टैग बना के रखे इसमें। सो बाय दिस I hope students have understand just the history of uh, inscriptions, I mean the source of history I can say. So बच्चों आप लोग जो समझ चुके होंगे कि जो द हिस्ट्री किसे कहते हैं, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, और हिस्ट्री के अंदर जो हमें क्या बताते हैं और उसका सोर्स क्या है। हिस्ट्री का जो सोर्स क्या है वो दो किस्म के, फर्स्ट वन इज आर्कियोलॉजिकल, सेकंड वन इज द लिटरेसी। तो हम इन तमाम चीज़ें पिक्चर के साथ हमने आपको बता दिया है। होप यू हैव अंडरस्टैंड। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।